Hey everybody, what's up? Hope you guys are doing great. Hope you guys are staying absolutely safe at home. Today for this video, we are going to deal with an amazing chapter of crop production and management. That is for grade 8 science, the very first chapter. We are going to deal with this chapter as a sprint session. We are going to know this entire chapter in one shot within 15 minutes. So the very first thing is we are going to learn about what are crops. Then we are going to learn about how to produce them, what is this production and how to manage them. We are going to learn with that. We are also going to learn a very small part, that is animal husbandry. Now, why is this chapter important and what this chapter includes? So you must be seeing farmers like him, right? They produce crops in their profession is to cultivate crops and produce them, and then provide us with grains. So it's very important to remember about this chapter to actually understand this chapter. So before beginning, let me tell you guys about the problems that we face while studying online on YouTube. The very first problem is of notes. You do not get authenticated notes, but you will get it here because इस chapter को जो notes हैं that is already uploaded on my channel. मेरे channel पे upload हो चुके हैं. Exam ready notes नाम का एक I have a series जिसमें we are discussing with notes of grade 6 to 8 साइंस एंड मैथ्स दोनों, मैथ्स एंड साइंस का दोनों सारे चैप्टर्स. तो ग्रेड 8 के सारे चैप्टर्स के आ गए हैं नोट्स. तो साइंस के तो इस चैप्टर के भी नोट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल. तो नोट्स की जो प्रॉब्लम फेस होती है यूट्यूब पे पढ़ने के टाइम, दैट इज ऑलरेडी सॉल्व. देन द डाउट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज डू टेल मी इन द डाउट सॉल्विंग सेक्शन provided in the description box. उसमें अपने doubts लिख दोगी, your doubts will be instantly solved. Then tests, you do not get tests. So the test for this video, the test for this chapter, he is provided in the description box. उसमें link है, वो test आप attempt करना. Assignments also you get here. You know your subject, enjoy your subject. You get recording of you get also suggestion box जिसमें आपको जो chapter का जो video चाहिए वो आप मुझे वहाँ पे लिख सकते हो and you will actually get it out there. Now before beginning, let us discuss your to do's guys. क्या है आपके to do's? आपको डाउट्स अगर आते हैं डाउट सॉल्विंग फॉर्म में अपने डाउट्स लिखने हैं ताकि मैं आपके डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व कर सकूं. सजेशन फॉर्म आप डिस्क्रिप्शन में वो फील ज़रूर कर दे. कोई भी वीडियो आपके चॉइस का आपको चाहिए, कोई भी चैप्टर चाहिए, या फिर सजेशन भी दे सकते हो, हाउ इज माई टीचिंग एंड एवरीथिंग. द टेस्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वो भी दिया है. सेशन PDF इज ऑल्सो, जो सेशन आप देख रहे हो पूरा का पूरा PDF इन द फॉर्म ऑफ नोट्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो प्लीज़ गाइज डू चेक इट आउट. प्लीज़ डू चेक इट आउट. Now let us deal. Now सबसे पहले guys, can you see this picture? ये पिक्चर क्या आपको दिख रही है? In this picture आपको क्या दिख रहा है? What you guys can see, there are plants है, लेकिन इस तरह से रो में plants हो रहे हैं, पूरे रो में ऐसे plants हैं और एक ही तरह के plant पूरे में है. Means the same kind of plant is cultivated in the entire field. Can you guys see it? So क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को जानने से पहले हम लोग को वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज क्रॉप. So actually the same kind of plant cultivated at a place constitute a crop. means एक ही तरह का प्लांट जो पूरे फील्ड में ग्रो किया गया हो एक ही जगह पे, वो मिलकर बनाता है एक क्रॉप को. This was what a crop is and we have understand it very smoothly. And do you know guys what is the difference between a crop, crop and a jungle? Jungle means there are different types of plants, but in the in the field where you grow crops there are only one type of plant. Now what are the different types of crop? क्या तरह के crop होता है? तो basically there are 3 types of crop. 3 तरह के crop होता है according to the season. तो पहला होता है आपका खरीफ crop आपका ग्रो होता है रेनी सीजन में, मानसून में. देन आपका आता है राबी क्रॉप जो कि आपका ग्रो होता है विंटर सीजन में. ना आप सोच रहे होगे NCERT में हम लोगों ने ये 2 पढ़ी है, पर तीसरा कहाँ से आ गया? तो तीसरा NCERT में तो नहीं है, बट या दिस इज एब्सोल्युटली अ टाइप ऑफ क्रॉप दैट इज ज़ैद क्रॉप्स जो कि समर सीजन में ग्रो होता है. सो ज़ैद क्रॉप इज ऑल्सो क्रॉप. नाउ लेट अस डिस्कस दैम इन डिटेल. So the very first one is that we are going to discuss is खरीफ क्रॉप that is grown in rainy season में ग्रो होता है और मई और जून में उसको सो किया जाता है. मतलब जो सीड्स हैं वो डाली जाती हैं मई और जून में खरीफ क्रॉप्स वाली सीड्स. हार्वेस्टेड इज इन अक्टूबर एंड नवंबर, और अक्टूबर नवंबर तक वो मैच्योर हो जाती है, ग्रो हो जाती है, एंड देन दे हार्वेस्ट देम. द फार्मर्स हार्वेस्ट देम. देन गाइस एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर कॉटन, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड पैडी. दिस आर द एग्जांपल्स. ना पता है कोई क्रॉप्स होती हैं जिनको बहुत वाटर की ज़रूरत होती है, बहुत वाटर की, लाइक पैडी.
पैडी को आप कभी भी समर विंटर में नहीं ग्रो कर सकते, सिर्फ मानसून में, रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हो। वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, और वाटर उसको हम लोग सिर्फ रेनी सीजन में ही इतना प्रोवाइड कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स, उसको हीट की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। बट वीट और ग्रेन्स जैसे जो क्रॉप हो गए, उनको इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड इन राबी क्रॉप्स, बिकॉज राबी क्रॉप्स आर द विंटर क्रॉप्स। सो फार्मर्स ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट कौन सा सीजन चल रहा है तो हम लोग को अभी कौन सा क्रॉप ग्रो करना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट दे कैन ग्रो एनी क्रॉप एट एनी सीजन, ऐसा नेवर हैपन्स। देन राबी क्रॉप्स होते हैं विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, और अक्टूबर नवंबर में उनको सो किया जाता है, मतलब उनके सीड्स को डाला जाता है, एंड हार्वेस्ट मार्च अप्रैल में हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स, होप यू गाइज हैव सीन द एग्जाम्पल्स, आई शो इट टू यू। ग्राम, पी, मस्टर्ड, व्हीट, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स। नाउ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दिस आर द क्रॉप्स ऑफ मिंट, आर द क्रॉप्स ऑफ मिंट। सो दिस आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन अ फील्ड, है ना। ये जो क्रॉप्स है वो फील्ड में ग्रो किए हुए हैं। तो हम लोग इससे क्या जानते हैं कि ये क्रॉप ग्रो कैसे किए हुए, क्या क्या स्टेप्स हम लोगों ने यूज किए इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो। सो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वी आर गोइंग टू डील विद द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज इन अ टेक्स्ट बुक एज वेल। आपके टेक्स्ट बुक में भी है ना, preparation of soil, then the sowing, then adding manures and fertilizers, irrigation, production from waste, harvesting, storage. ये है basic practices of crop production. Now let us deal with each of them in detail and understand them within 15 minutes. So the very first thing is the process of loosening and turning the soil is known as tiling or plowing. When is, देखो यहाँ पे I'll show it to you guys. यहाँ पे soil जो है उसको हम लोग लूज कर रहे हैं, बिकॉज जो अर्थबॉर्न्स होते हैं उनको ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए होता है, एंड दे आर एक्चुअली द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। एंड देन हम लोग उस सॉइल को लूज करते हैं, क्योंकि जो ह्यूमस होता है सॉइल पे, जो ह्यूमस होता है, जो ह्यूमस, यू मस्ट बी अवेयर, राइट। आपने क्लास 7 में पढ़ा है इन द लास्ट चैप्टर, नो, इन द चैप्टर फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन, यू हैव स्टडीड अबाउट ह्यूमस, दैट ये जो सॉइल होता है ना, उनके ऊपर ह्यूमस होता है, उनके ऊपर ह्यूमस। अब ह्यूमस ऊपर होता है तो प्लांट तो का रूट्स तो नीचे होगा, तो ह्यूमस उन तक कैसे पहुंचेगा। सो इफ वी लूजन द सॉइल, जो ह्यूमस होता है दैट विल गो देयर, एंड देन द प्लांट्स विल गेट देयर न्यूट्रिएंट्स। So this is known as plowing or tiling, and this is only the step that is preparation of soil. This is how you prepare the soil. Which are the agricultural implements you use for this? You use a plow and hoe for this particular thing. So this is an example of this is so not example, but yeah, this is sort of picture of a plow, how a plow looks like. This is the beam, then the plow shaft, and this everything is here. And then here is a hoe. It's a hoe. So in the textbook, I know the modern hoe is given, but this is also known as a hoe. This is also known as a hoe. Fine, clear with this, guys. Now let us move on. This is the iron hoe that is here, the wooden iron hoe. Now let us deal with another process, that is sowing. Sowing क्या होता है? So सीडिंग, सोइंग मतलब एक तरह से सीडिंग हम उसको बोल सकते हैं। वाई? बिकॉज जो अगर आपने एक बार सॉइल को तैयार कर दिया, आपका सॉइल एकदम रेडी है, इफ़ योर सॉइल इज़ रेडी, वेरी प्रॉपरली इट्स रेडी, देन उसके अंदर आपको सीड्स डालने होते हैं, ताकि आपने सॉइल को रेडी कर दिया, थोड़े प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाएंगे। यू हैव टू ऐड सीड्स, ताकि सीड्स फिर बाद में प्लांट्स बने, सो दैट दिस लीड्स डेवलप इनटू प्लांट्स फर्दर। नाउ वी आर गोइंग टू नो द फनल मेथड, फनल वाला। अब पहले क्या हुआ करता था, दिस इज द ट्रेडिशनल टूल, दैट पहले दे यूज टू कीप द शार्प रॉड, यहाँ पे एकदम शार्प सी रॉड होती थी, यहाँ पे एक फनल रखते थे, और फिर किसी एनिमल को, या फिर वो खुद ही उसको खींचते थे, किसी एनिमल को बोला करते थे खींचने, लाइक बुलक्स एंड एवरीथिंग। तो द एनिमल्स जो है वो उसको खींच रहे हैं, एंड वो उसके अंदर सीड्स डाल रहे हैं, तो वो सॉइल में जाते जा रहे हैं, एंड वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। दिस वॉज अ फनल मेथड, ओके, बट दिस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर, बहुत टाइम और लेबर लग जाता था। बट देन केम द सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या होता है, उसके अंदर आपको सीड्स डाल देने, वो अपना काम खुद ही करेगा, उसको ट्रैक्टर के थ्रू फ्लो करना है, एंड वो ना सारी सीड्स को इट विल स्प्रेड देम इन यूनिफॉर्म मैनर, इट विल कीप द सीड्स इन यूनिफॉर्म मैनर एंड provide equal distances, and it will make sure that the seed is then after then covered with soil. जैसे ये सीड्स है समझो, ये हैंड मेरा, उसके ऊपर जो सॉइल वो कवर कर दे, इट मेक श्योर, बिकॉज अगर सॉइल कवर नहीं होगा, द बर्ड्स एंड द पेस्ट्स विल ईट द सीड, एंड देन द सीड विल completely destroy, and then the seed will not grow to plants. Fine.
Clear with this, guys? Now the very next thing is manures and fertilizers. Manure और fertilizers की भी एक ज़रूरी चीज़ है. अगर आपने खाना ऐसे ही दे दिया उन लोग को जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो क्या काम आएगा? So you have to give them some nutrients also. So these are the soil nutrients. These are the substances. Manures and fertilizers are the substances which are added to the soil in order to provide soil with nutrients, or they are added to soil in the form of nutrients. Cool. Clear with this, guys? Now let us look at some more tips. There is a difference between manure and fertilizer. What is the difference between manure and fertilizer? Do you guys know this? ये 100% आपके एग्जाम्स में आ गई ये क्वेश्चन. What is the difference between manure and fertilizer? This is a 100% question that will come in your examination. So please look at this slide very properly. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की. तो वो मैन मेड होते हैं, हम इंसान उनको बनाते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज में बनते हैं. दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. सॉइल को बहुत ह्यूमस दे प्रोवाइड नो ह्यूमस टू द सॉइल. मतलब वो सॉइल को ह्यूमस देते ही नहीं है. दे हैव नो ह्यूमस बट दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जिनमें दे आर वेरी रिच. नाउ लेट अस डील विद द मैन्योर्स. मैन्योर्स से डील करें तो मैन्योर्स क्या होते हैं? दे आर टोटली नेचुरल. वो मैन मेड नहीं होते, वो नेचुरल होते हैं. वो वर्मी कंपोस्ट, देन द कंपोस्ट थिंग, देन द ड्राई लीव्स which we compose them in the compost pit, and then they turn to manures. Then the dung cakes you use, these are manures. And also the through dung cakes the biogas and everything is produced. So the spelling is wrong here. Natural will be NAT, but yeah. Prepared in fields. So manures are prepared in fields. उनको fields में ही बना लिया जाता है. They aren't required. They are not required to prepare in factories. Provides a lot of humus to soil. A manure provides a lot of humus to soil. But do you know, guys? So this is very less rich in plant nutrients. Very less rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. जो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. एक फर्टिलाइजर होती है, मैं आपको फर्टिलाइजर का नाम बोल देती हूँ. वो होता है NPK, जो कि प्रोवाइड करता है प्लांट को विथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और K से होता है आपका पोटेशियम का केमिकल नेम है ना. तो ये जो चीज़ें हैं वो NPK प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. दिस इज अ फर्टिलाइजर. फाइन. सो गाइज प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, और सेशन PDF नीचे है तो उसे देख लेना, बिकॉज दिस इज अ 100% गारंटेड क्वेश्चन दैट मे कम इन योर एग्जामिनेशन. अब इस स्लाइड को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? दिस स्लाइड हैज अ लॉट ऑफ वाटर यहाँ पे है ना. सो आपको लग रहा है कि अब प्लांट्स को ना पानी दे रहा है, अब प्लांट्स को ना पानी दिया जा रहा है. Yes guys, this is known as irrigation. So the supply of water to crops at regular intervals is called as irrigation. जो पानी हम लोग अपने क्रॉप्स को पानी देते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे देना होता है. ऐसा थोड़ी कि आपने एक दिन खाना खाया, 2 दिन खाना छोड़ दिया, फिर एक दिन खाया. इन दैट वे ओनली प्लांट्स को भी दे वांट वाटर रेगुलर इंटरवल्स इन प्रॉपर क्वांटिटी. ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं. दे वांट इन प्रॉपर क्वांटिटी, एंड दिस इज नोन एज इरीगेशन. सो व्हाट आर द two main methods of modern methods of irrigation? They are the drip irrigation and the sprinkler system. Drip irrigation and the sprinkler system. So now guys, there are also the traditional methods of irrigation like the moat, dhekli, rahat and chain pump. These are the traditional methods of irrigation. Then the modern methods are drip irrigation as well as the sprinkler system. So the drip irrigation में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो drip irrigation का, so just look at this picture very properly. This is picture of drip irrigation ना. So यहाँ पे देख रहे हो पाइप्स के थ्रू पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, और ड्रिप जो पानी है ना, बूंद बूंद से इट गोज डायरेक्टली टू द रूट ऑफ प्लांट्स. इट गोज डायरेक्टली टू द रूट ऑफ प्लांट. वो डायरेक्टली प्लांट के रूट्स के अंदर जाता है. ओके, हम सो नो वाटर इज वेस्टेड. जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होती है, दैट इज अ लेस वाटर, वहाँ पे एक बूंद पानी वेस्ट नहीं होता है, बिकॉज बूंद पानी जो है ना आपके प्लांट्स में वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, वो जा रहा है, तो वाटर वेस्टेज नहीं होता. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट thing. This will be 100% guaranteed that how is drip irrigation helpful. 100% guaranteed question in your examination. अब sprinkler system. ये sprinkler system नाम से you can see that this sprinkle something. So this will make plants feel like rain हो रहा है. Rain की तरह they will provide them with water. इस तरह से, ठीक है. As you can guys see in the picture as well, rain की तरह this is providing plants with water. So this is about irrigation, drip irrigation and the sprinkler system. Now guys, let us know about weeds.
सो द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सो वीड्स होते क्या, दिस आर द अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद अवर क्रॉप्स, हमारे क्रॉप्स के साथ है ना वो ग्रो हो जाते हैं, हमको चाहिए ही नहीं कि वो ग्रो है, बट देन ऑल्सो दे लाइक लेट अस ग्रो, वी डोंट केयर व्हाट यू थिंक, वी विल ग्रो, दैट इज आवर चॉइस, वो ग्रो हो जाते हैं। देन दे टेक अवर द न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल, अब वो जो सॉइल होती है हमारी उनमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, फाइन, हमारे सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने सॉइल को दिए हैं प्लांट्स के लिए वो ले लेते हैं वीड्स। अब प्लांट्स को क्या मिलेगा, उनको कॉम्पिटिट करना पड़ता है वीड्स के साथ, और हमारे क्रॉप्स को कॉम्पिटिट करने के चक्कर में येल्ड हमारा बहुत कम हो जाता है। येल्ड मतलब जो प्लांट है जो कि हम लोगों को 2 kg ऑफ वीट प्रोवाइड कर रहा है, वो अब प्रोवाइड करेगा सिर्फ 500 ग्राम या 1 kg, तो बहुत कम हो जाता है, येल्ड रिड्यूसेस। द स्पेलिंग ऑफ येल्ड इज certainly wrong here, please do check it out, the correct spelling is this, ओके। सो वीड्स को अब कंट्रोल भी करना पड़ेगा हम लोग को, वो इतने खराब है, कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। सो वीड्स आर कंट्रोल यूजिंग वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स के थ्रू उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए वीडीसाइड्स कैसे होते हैं ये भी लेट अस सी। वीडीसाइड्स आर इन द स्प्रे फॉर्म, देखो दिस मैन इज स्प्रेइंग वीडीसाइड्स, दिस पिक्चर इज इन योर एनसीईआरटी बुक एज वेल, सो यू कैन रेफर। सो उसने मुंह पे मास्क लगा रखा है एंड देन ही हैज़ अ टैंक एंड थ्रू विच ही इज स्प्रेडिंग वीडीसाइड्स टू द प्लांट्स। Cool, clear with this guys, are you guys clear with this? Okay, now let us deal with another thing, that is harvesting and threshing. This both we are going to deal with. So harvesting is the cutting of crop after it is mature. एक बार वो mature हो जाता है, एक बार वो बड़ा हो जाता है तो crop को harvest कर दिया जाता है, मतलब उनको कट कर दिया जाता है ना। इट कैन बी डन मैनुअली बाइसिकल और बाई मशीन कॉल हार्वेस्टर। मैनुअली मतलब हाथ से भी ऐसे 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 आप काट सकते हो, बट यू बेटर इज टू डू विद मशीन्स, बिकॉज मशीन्स उसको लेस लेबर में कर देंगे विद लेस टाइम, बट दे रिक्वायर लॉट ऑफ मनी एज वेल। Then the separation of chaff from harvested grains is called threshing. जो शेफ होता है मतलब आपका ग्रेन्स है उसमें से कुछ पत्थर होंगे या फिर कुछ वो चीज़ें होंगी जो आपको रिक्वायर नहीं है, प्लांट का कोई पार्ट होगा, जैसे वीट होता है, वीट अंदर होता है लेकिन बाहर है ना उनका एक एक लेयर होता है, वो शेफ जो होता है उसको हम लोग को वीट में से सेपरेट करना होता है, तो वो बोला जाता है उसको थ्रेशिंग। थ्रेशिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको ग्रेन्स क्लीन होके नहीं मिलेंगे ना। तो आप कंबाइन इज अ मशीन दैट इज यूज फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग बोथ। इट विल हार्वेस्ट द क्रॉप और हार्वेस्ट करते करते सारे क्रॉप्स को थ्रेश भी कर देता है। कूल राइट। And the farmers also use the method of winnowing for separation of chaff. They also use the method of winnowing. Winnowing मतलब यहाँ से उन्होंने they have taken a container, वहाँ से डाला, जो भी chaff होगा वो एयर में फ्लाई हो जाएगा, जो भी ग्रेन होगा वो नीचे गिर जाएगा। Cool. Now this is a book. This is from your NCERT only. So this is from your NCERT only. Farmers also store grains in jute bags, metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries. मतलब वो लोग jute bags, metallic bins में स्टोर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं तो silos और granaries में उनको स्टोर करना पड़ता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे पेस्ट से, रैट्स से और इंसेक्ट्स से। तो ड्राइड नीम लीव्स होते हैं ना, उनको ग्रेन्स के ग्रेन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट्स ना आपके ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय ना करें। ये है आपके इमेजेस स्टोरेज कैंस की। यहाँ पे देख रहे हो जूट बैग्स में बहुत लार्ज स्केल में स्टोर किया गया है आपका ग्रेन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने लास्ट में स्टोरेज सही नहीं की, मीन्स आपने क्रॉप भी जान लिया, प्रोडक्शन भी जान लिया, अगर आपने मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया, देन द इंटायर हार्डवर्क दैट फार्मर्स हैव डन, वो इट इज़ जस्ट लाइक वो वेस्ट हो जाता है ना। स्टोरेज, ये है आपका स्टोरेज का है। कूल। नाउ गाइस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्रॉप रोटेशन ऐसा होता है कि अब अगर आप एक ही सॉइल पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते हो और आपने फिर क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल फिर आपने उन क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर दिया, फिर आपने फिर से वो क्रॉप्स ग्रो कर दिए, फिर से वही सेम क्रॉप्स ग्रो करिए, तो अब क्या होगा, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये जो क्रॉप है अगर वो वीट है और वीट फॉर एग्जांपल, ये दिस इज़ जस्ट एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ये, अगर वीट सबसे ज़्यादा को पोटेशियम रिक्वायर करता है ग्रो करने के लिए, जस्ट एन एग्जांपल,
तो पोटेशियम जितना भी सॉइल में होगा पहले राउंड में वीट ले लेगा, फिर अगर हम लोग हार्वेस्ट करके फिर से वीट ग्रो कर देंगे दूसरे राउंड में भी पोटेशियम, मतलब सॉइल जो है उसमें पोटेशियम ख़त्म हो जाएगा। देन दिस इज़ व्हाट इज़ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसी को बोला जाता है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द सॉइल विल फेस द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्कैरसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो इसीलिए जो क्रॉप रोटेशन है वो रिक्वायर होती है। द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ एनिमल हस्बेंड्री। फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स में से भी फूड्स मिलता है जिसकी वजह से एनिमल्स को रियर किया जाता है एंड उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं एनिमल्स आर, ये हमको मिल्क दे रहे हैं तो इसलिए एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, रियर कर रहे हैं उन लोगों को, सो उनको ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं ना गाइस। अगर आपको ये स्प्रिंट सेशन पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द वीडियो गाइस। बाय गाइस।